Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another LeetCode daily challenge, parsing a Boolean expression. And this time it's another hard question. So let's start with a question. A Boolean expression is an expression that evaluates to either true or false. It can be in one of the following shapes. T that evaluates to true, F that evaluates to false, then not of some expression that evaluates the logical not of the inner expression sub XPR. So basically this denotes the logical not of the inner expression. Then we have and of multiple expressions that evaluates to the logical and of the inner expressions sub expression 1, 2 and so on. Then we have the logical or that evaluates to the logical or of the inner expressions sub XPR1, sub XPR2 and up till sub XPRn. Now, given a string expression that represents a Boolean expression, we have to return the value of the evaluation. It is guaranteed that the given expression is valid and follows the given rules, right? So basically हमें एक Boolean expression दिया हुआ है जो कि इस शेप में होगा, उसमें t और f प्रेजेंट होंगे, राइट? लॉजिकल नॉट की जगह पर ये साइन होगा, लॉजिकल एंड की जगह पे लॉजिकल एंड का साइन होगा, लॉजिकल और की जगह पे लॉजिकल और का साइन होगा, एंड वी हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेस्ट केस. हमारे पास आता है एंड ऑफ ब्रैकेट ओपन और ऑफ ब्रैकेट ओपन एफ. सो बेसिकली यहाँ पर अकेले एफ प्रेजेंट है, तो लॉजिकल और ऑफ एफ करोगे, अब अकेला एफ ही है, दिस मीन्स कि ये लॉजिकल और ऑफ एफ क्या हो जाएगा, वो एफ ही आएगा. एफ मीन्स फॉल्स, रिमेंबर टी मीन्स ट्रू, एफ मीन्स फॉल्स. ओके, तो ये पार्ट जो होगा ये इवेलुएट होके आएगा फॉल्स. देन वी हैव गॉट द एंड ऑफ एफ. एंड ऑफ एफ क्या आएगा, सिंपल सी बात है, एफ अकेला है और तो कुछ है नहीं, तो लॉजिकल एंड ऑफ एफ क्या आ जाएगा, एफ. So this means our answer is going to be false. Let's come to the second test case. We have logical OR of f f f t. So basically हमें पता है कि लॉजिकल OR को ट्रू होने के लिए बस एक भी एलिमेंट अगर ट्रू हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, राइट? So we can see we have three f's and we have a single t. Therefore, the logical OR of f f f t would be t. So we'll get the output as true, right? Let's come to the final test case. We have लॉजिकल नॉट ऑफ एंड ऑफ एफ कॉमा टी. सो एफ कॉमा टी का लॉजिकल एंड क्या होगा, फॉल्स आएगा, राइट? ट्रू एंड फॉल्स का लॉजिकल एंड आता है फॉल्स, एंड नाउ नॉट ऑफ फॉल्स इज व्हाट, इन्वर्जन, राइट? सो इट विल बिकम ट्रू, so the output is true. Now let's go to the constraints. So constraints क्या है, बेसिकली जो हमारा एक्सप्रेशन का लेंथ है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कैन गो अप टू 2 into 10 power of 4. So ये बेसिकली लेंथ ऑफ द एक्सप्रेशन है. An expression of I is one of the following characters: opening brace, closing brace, and logical or, logical not, t, f, and comma. Right? So these are the constraints, and this is the explanation of the question. Right? So now let's try to build up an approach for this problem. So a lot of you might have understood कि this is basically a modification of the problem valid parenthesis. आपने एक बहुत famous question सुना होगा जो कि होता है parenthesis matching का. Let's say you are given an expression like this and you have to find if this set of expression has a valid parenthesis match or not, right? तो ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है, इट्स जस्ट अ स्मॉल मॉडिफिकेशन, अ बिट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ दिस सेम प्रॉब्लम, राइट? और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करते थे, बाय यूजिंग स्टैक्स, राइट? बाय यूजिंग स्टैक्स. नाउ लेट्स सी कि इस प्रॉब्लम में हम लोग स्टैक्स कैसे यूज करेंगे. अब आप एक पैटर्न नोटिस करो कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन ओपनिंग ब्रेस, उसके जस्ट पहले कोई लॉजिकल साइन होगा, राइट? व्हेनेवर व्हेनेवर वी आर facing an opening brace, there is a logical sign just in front of it, right? उसके जस्ट स्टार्टिंग में, उसके जस्ट पहले एक क्या होगा, एक लॉजिकल साइन होगा जो कि या तो नॉट होगा या तो एंड होगा या तो और होगा, राइट? अब क्या है, हाउ डू वी नो कि एक एक्सप्रेशन एंड हो गया है? सो हाउ डू वी नो कि वो एक्सप्रेशन जो है वो खत्म हो चुका है? वी कैन डायरेक्टली सी कि जैसे ही हम लोग एक क्लोजिंग ब्रेस के पास आते हैं, वी कैन सी कि नाउ वी कैन इवेल्युएट दिस पार्ट, राइट? हमें एक ओपनिंग ब्रेस मिला, हमें एक साइन मिल गया. एज सुन एज वी एनकाउंटर अ क्लोजिंग ब्रेस, वी नो कि अच्छा हाँ, वी आर नाउ रेडी टू इवेल्युएट दिस अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस टेस्ट केस, राइट? यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंड है. नाउ वी हैव एन ओपनिंग ब्रेस, राइट? देन वी हैव एन और साइन, देन वी हैव अनदर ओपनिंग ब्रेस, देन वी हैव एफ, राइट? और उसके बाद वी कैन सी कि क्लोजिंग ब्रेस आ जाता है. सो एज सुन एज वी एनकाउंटर क्लोजिंग ब्रेस, वी नो कि वी आर रेडी टू इवेल्युएट दिस मच अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट? सो ये तो हमारे दिमाग में एक
अप्रोच बैठ गई होगी कि वेन एवर वी फेस अ क्लोजिंग ब्रेस वी हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू। ओके, दिस मच एक्सप्रेशन की इवेल्युएट, दिस मच एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो हमें इवेल्युएट करनी होगी। सो इसको इवेल्युएट कर देंगे। जैसे इसको इवेल्युएट करेंगे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे एंड वील पुश द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जो भी इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा वो हम वापस पुश करा देंगे। तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम एफ। फिर हम दोबारा आते हैं। नाउ वी हैव अनदर क्लोजिंग ब्रेस। में फिर से क्लोजिंग ब्रेस मिला, दिस मींस दैट वी आर अगेन रेडी टू इवैल्यूएट दिस मच अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन। सो अगेन हम देखते हैं, वी हैव एन ओपनिंग ब्रेस, वी हैव अ साइन फॉलोड बाय इट उसके पहले, एंड वी हैव अ क्लोजिंग ब्रेस। नाउ अगेन दिस मच वैल्यू विल इवैल्यूएट टू व्हाट, विल इवैल्यूएट टू एफ। और जब फाइनल में जब ये क्वेश्चन एंड होगा, जब बेसिकली जब हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन जो होगा इवैल्यूएट हो जाएगा, our stack would be containing two variables, basically one variable, it would be either t or it be false. At the end of the evaluation of the complete expression हमारे पास एक वेरिएबल होगा, या तो वो f होगा या तो वो t होगा, एक ही कैरेक्टर होगा बेसिकली। सो इफ इट इज f इट मींस कि हमारा जो टोटल एक्सप्रेशन था उसका इवैल्यूएशन फॉल्स आया है। इफ इट इज t इट मींस कि हमारे पूरे एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन ट्रू आया है। नाउ लेट्स सी कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, राइट? लेट्स सी हाउ डू वी इंप्लीमेंट दिस एक्सप्रेशन, implement this code, this question, right? So सबसे पहले तो we'll build some functions, right? We'll build some functions। पहला logical and के लिए बनाते हैं। Let's say log and it will be having what, char f char s, क्योंकि दो चीजें होती हैं। Now logical and की वैल्यू क्या होती है? Basically we can write return f exactly equivalent to t, right? And s exactly equivalent to t। अगर दोनों ही वेरिएबल्स जो हैं, दोनों एफ और एस जो हैं, सिंस वी कैन सी कि जो एंड और वाले एक्सप्रेशन है उनमें दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं जनरली। बेसिकली इन सब में दो दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। वील सी हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट, वील सी कि हम उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे सच दैट एवरी पीस ऑफ कोड टेक्स वैल्यूज इन दैट मैनर, राइट? अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, अगर दोनों ट्रू हो गए इन दैट केस ओनली हम टी रिटर्न कराएंगे, एल्स वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। ये हो गया लॉजिकल एंड हमारा, राइट? लेट्स कम टू द सेकेंड फंक्शन, लॉजिक और। लॉजिकल और में क्या होता है, कैर एफ कैर एस, and what do we do, return what, if x is if s is f is exactly equal to f and s is also equal to f। अगर दोनों ही फॉल्स हैं, अगर दोनों ही फॉल्स होते हैं सिर्फ तभी लॉजिकल और में f रिटर्न होता है, नहीं तो ट्रू रिटर्न हो जाता है, राइट? सो ये वाला एक्सप्रेशन वो इवैल्यूएट करेगा कि अगर दोनों f है इन दैट केस ओनली विल रिटर्न फॉल्स, एल्स विल रिटर्न ट्रू। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कैर ऑफ लॉजिक नॉट। लॉजिकल नॉट बहुत इजी है। वी हैव दिस वर्ड, एक ही एक्सप्रेस, इसमें एक ही वेरिएबल आएगा। व्हाट विल डू, रिटर्न इफ f इज एक्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, f। तो हम ट्रू रिटर्न करा देंगे, अगर ये फॉल्स है तो इसको ट्रू रिटर्न करा देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करा देंगे, राइट? दिस इज हाउ ऑल दीज थ्री फंक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड, राइट? अब जरा इस कमेंट्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ओके, या ए, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन। सबसे पहले व्हाट विल डू, सबसे पहले we'll get the length of the expression, it's what, expression dot size, right? उसके बाद हम एक स्टैक डिक्लेयर करेंगे, व्हाट, स्टैक char st। दिस विल बी यूज फॉर मेंटेनिंग क्या, द ओपनिंग ब्रेस, द साइन एंड द वेरिएबल्स। सो बेसिकली हमारा जो स्टैक होगा ना वो क्या क्या मेंटेन करेगा, आर स्टैक विल मेंटेन ओपनिंग ब्रेस, ओके, इट विल मेंटेन ओपनिंग ब्रेस और साइन, नॉट साइन, एंड साइन, एंड एफ एंड टी। कॉमा और क्लोजिंग ब्रेसेस हम लोग स्टैक में मेंटेन नहीं करवाएंगे, ओके? क्योंकि सिंपल सी बात है, क्लोजिंग ब्रेस है तो हम लोग पता लगा रहे हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एंड हो रहा है। एंड कॉमा इज ऑफ नो यूज, कॉमा इज ऑफ नो यूज, दैट्स वाई उसको पुश कराने का मतलब है नहीं, राइट? सब इसको स्टार्ट करते हैं। विल डिक्लेयर नाइट्रेटिव वेरिएबल आई इक्वल टू 0। नाउ वी स्टार्ट while I less than n। now what we'll do, while I is less than n, an expression of I is not equal to क्लोजिंग ब्रेस। जब तक हमें क्लोजिंग ब्रेस नहीं मिल रहा है तब तक हमें क्या करना है,
इन चीजों को पुश कराना है, राइट? तो क्लोजिंग ब्रेस को छोड़ के हमारे पास ये बाकी कैरेक्टर्स बच रहे हैं, राइट? और एक कॉमा भी आएगा, और कॉमा को हैंडल करने के लिए हम इसमें बीच में कोड लिख देंगे, इफ expression expression of I is not equal to comma, then only we'll push that expression of I, right? उसके बाद we'll do I plus plus. अब क्या है, नाउ वी आर डन कि हमारे पास क्लोजिंग ब्रेस नहीं आया है। एज सुन एज वी एनकाउंटर अ क्लोजिंग ब्रेस, एज सुन एज वी एनकाउंटर अ क्लोजिंग ब्रेस, व्हाट विल डू, हम लोग एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर देंगे। आई लेस देन एन एंड एक्सप्रेशन आई इज एग्जैक्टली इक्वल टू अ क्लोजिंग ब्रेस। ये कब तक चल रहा है? जब तक चल रहा है जब तक क्लोजिंग ब्रेस नहीं इक्वल आ रहा है। ये कब तक चलेगा? जब तक क्लोजिंग ब्रेस के इक्वल है, क्योंकि जैसे क्लोजिंग ब्रेस के अलावा कोई और कैरेक्टर आएगा, दिस मींस दैट वी हैव स्टार्टेड विद अनदर एक्सप्रेशन। सिंपल सी बात है, अगर क्लोजिंग ब्रेस के अलावा कोई भी और कैरेक्टर आता है, दिस मींस दैट वी हैव स्टार्टेड अनदर एक्सप्रेशन। सो हमें ये वैल्यूएशन रोकना पड़ेगा, राइट? अब इसको आगे देखते हैं, हाउ विल डू आफ्टर दिस, while st डॉट, while not st डॉट empty, जब तक हमारा स्टैक खाली ना हो जाए, and st dot top is what is not equal to opening brace। अब ये क्यों कर रहे हैं हम? दिस बेसिकली, आप इधर देखो, एज आई सेड कि एक ओपनिंग ब्रेस हमेशा रहता है हमारे जो लॉजिकल ऑपरेशन है उसके उसके पहले उसके बाद में, राइट? सो बेसिकली हम ऐसा कर रहे हैं कि हमें ये मिला, उसके बाद हम जितनी भी अंदर की वैल्यूज हैं उनको इवेल्युएट कर रहे हैं, उनको उठाएंगे, एंड देन व्हाट वील डू, जैसे हमारा ओपनिंग ब्रेस आएगा, जैसे ही वी एनकाउंटर एन ओपनिंग ब्रेस, वी नो कि इसके जस्ट बाद हमारा लॉजिकल साइन होगा, राइट? दैट इज वाई वी आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट। जैसे हमारा ओपनिंग ब्रेस आएगा, वी नो कि वी हैव अ लॉजिकल साइन इन फ्रंट ऑफ इट, दैट्स वाई वी हैव टू स्टॉप द इवैल्यूएशन एट दिस पॉइंट। ओके, तो हम क्या करेंगे, what we'll do, we'll declare two variables, bool t be false and we'll take f equal to false। अब ये क्या किस लिए है? these variables are basically to denote कि अगर कोई t वेरिएबल आया था या कोई f वेरिएबल आया था, अगर t आएगा, t मींस कि ट्रू कोई आएगा, तो दिस t वेरिएबल विल बिकम ट्रू, और अगर कोई f आता है देन दिस f विल बिकम ट्रू। ओके, सो हम इसको लिख लेते हैं, if what st dot top is exactly equivalent to f, then what f will become true, and if st dot top is exactly equivalent to t, then it will become what, t will become true, right? And then we'll just st dot pop, and that is it। ये हमारा पार्ट हो गया कि जहां पर हम एक्सप्रेशन को देख रहे हैं कि ट्रू और फॉल्स आए हैं, या अगर आए हैं तो कितने आए हैं। बेसिकली एट द एंड वी नो कि मान लीजिए 5 फॉल्स हो, 10 फॉल्स हो, या फिर 6 ट्रू हो, कुछ भी हो, एट द एंड वी नो कि हमारे पास बस 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। वी ओनली नीड 2 वैल्यूज, कि ट्रू है कि नहीं है और फॉल्स है कि नहीं है। हमें उससे पता लग जाएगा कि पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आने वाली है। दैट्स वाई हम सिर्फ 2 वेरिएबल मेंटेन कर रहे हैं, इससे हमें पता लग जाएगा कि व्हाट द एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी इवैल्यूएटेड एट। नाउ व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल st डॉट पॉप, ये पॉप किस लेकर आया, टू रिमूव ओपनिंग ब्रेस, ये ये हटाने के लिए। नाउ व्हाट वी डू, इफ st डॉट टॉप इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, अगर लॉजिकल एंड है तो हम क्या करेंगे, st डॉट पॉप करा देंगे पहले तो। ये पॉप क्यों कराया, दिस पॉप इज फॉर रिमूविंग द दिस साइन। ओके, ये पॉप था ओपनिंग ब्रेस हटाने के लिए, एंड दिस वाला पॉप है फॉर रिमूविंग दिस साइन। ठीक है, जो भी साइन होगा, एंड और नॉट जो भी होगा। एंड व्हाट डू वी पुश, अब हमें वैल्यू भी तो पुश करनी है। व्हाट डू वी पुश लॉजिकल लॉजिक एंड ऑफ। अब सिंपल सी बात है, वी नो कि इसको 2 वेरिएबल्स चाहिए, एफ एंड एस। तो देखते हैं क्या होगा। अब लिखते हैं, अगर एफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू ट्रू, तो एफ भेजेंगे, नहीं तो ट्रू भेज देंगे, राइट? और इसको 2 वैल्यूज चाहिए, राइट? तो यहां पर ऐसे लिख देते हैं इसको, दिस इज वन थिंग। ओके, ये है एफ के लिए कि वी आर चेकिंग कि एफ फॉल्स प्रेजेंट था कि नहीं था। अगर फॉल्स प्रेजेंट होगा तो एफ भेजेगा, नहीं तो ट्रू भेजेगा, राइट? नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट द सेकंड पार्ट, कि अगर टी प्रेजेंट था कि नहीं था। अगर ट्रू प्रेजेंट था तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू सेंड
t, else we are going to send false. Okay, ये हो गया लॉजिकल एंड का पार्ट. Then we have what? st dot top. We'll just put else if st dot top is exactly equivalent to what? Logical or. तो आप समझ चुके होंगे क्या करना है, ऑफ करना है. एंड देन we'll push what? Logic or. अगेन f is exactly equivalent to true. सेम चीज लिखनी है. f भेजो नहीं तो t भेजो. Then we have got the second part. So ये सही वैल्यूएट हुआ है. ओके. ओके. Now we'll write t is exactly equivalent to true. Then we have true and then we have f. राइट, ये लिख दिया हमने. अब आता है else if st dot top is exactly equivalent to what? Is logical not. अब इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू सेंड करनी है, तो क्या करोगे, पहले तो st dot top करा दो. if f अगर false true है तो what will s dot push logic not or what of f. ठीक है, else st dot push logic not of true. राइट, इसको एक बार पूरा देख लेते हैं. ये यहां तक चला. नाउ दिस हैज टू बी व्हाट? ये ठीक है, ये i plus plus. Then we just popping, we are getting the values. Then this is for removing the brace. This is for evaluating the process. Evaluation क्या है expression का. And then हमें इस वाले लूप में i plus plus भी डालना है. Why? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है. Then when we now this piece of code is complete. Now हमें just बाहर आना है इसके. And we'll check if return what? If st dot top as we said कि फाइनली सिर्फ एक वैल्यू बचेगी, या तो वो f होगी या तो ट्रू या फिर t होगी. If it is f, then we'll return what? False. Else we'll return true. अब इसको चला के देखते हैं एक बार. Okay, so we can see our piece of code passes the sample test cases. Let's try to run it for all test cases. Okay, so we can see that our code passes all test cases और काफी अच्छा है. Let's try to see कि इसकी time और space complexity क्या होगी. So first of all, तो I can directly tell you कि both of the space and time complexity are order n, but we'll also see what lead code has to say. So lead code can tell us its order n, time complexity, and the space complexity is what? That is also order n. Okay. Now let's try to see कि order n दोनों कैसे आई. Okay. सबसे पहले तो space complexity order n क्यों है? Because we are using a stack and we are pushing the elements of the stack, right? So that's why in worst cases we can see कि around सारे ही elements push हो जाएंगे. So that's why I can write the space complexity of this approach. The space complexity of this approach is what? Order n, right? Now let's try to see कि इसकी time complexity क्या है. Time complexity is what? Now स्टैक इस पे आते हैं, राइट. नाउ अ लॉट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि भाई दो लूप लगाए आपने तो भैया ये तो ऑर्डर एन स्क्वायर जा रहा है. बट नो, अगेन आई एम गोइंग टू यूज द सेम ऑब्जर्वेशन, सेम अप्रोच. बेसिकली आप स्टैक में कोई भी एलिमेंट सिर्फ एक बार पुश करते हो और एक बार पॉप कराते हो. दैट्स वाई जो ओवरऑल एमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर ऑपरेशन है वो ऑर्डर वन हो जाती है. एंड सिंस आपका आउटर लूप एन टाइम्स चलने वाला है, दिस इनर लूप्स आर बेसिकली इनका एमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर ऑपरेशन क्या है, ऑर्डर वन है. That's why the outer loop works for n times, the inner loop will also work up till total n times, right? ये जो अंदर वाले लूप है ना, these will work total n times, not per operation. एक होता है कि per operation n times काम करना. When your inner loop works for n times per operation, then आपकी time complexity order n square जाती है. When your inner loop works total n times, उस केस में amortized time complexity per operation order 1 हो जाती है, and then your total time complexity becomes what? It becomes order n. That's why आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगा, ऑर्डर एन, राइट. सो नाउ लेट्स पुट सम कमेंट्स इसको समझाने के लिए. व्हाट
performing logical and this is what performing logical or this is performing logical now, right? This is for what? Maintaining values. Now I have told you कि हम कौन सी values maintain करने वाले हैं, right? वो ये सारी हैं. Then keep pushing until a closing brace is encountered, right? This is what ignoring commas. We have to ignore commas because वो हमारे किसी काम के नहीं है, तो उनको हटाओ. Then this is what keep on evaluating as we have hit the end of an expression. Okay, right? उसके बाद ये क्या है? Track if false and true have been encountered, right? Then this is for removing this. Then st dot pop, basically st dot pop तीनों में common है. This st dot pop is for what? I'll just add another comment in between. St dot pop is for removing the logical operation. Then all these three parts, ये वाला part, and ये वाला part are what? These are for basically what? Evaluation. This is evaluation. Okay. And yeah, we can just write evaluation. I'll just write it. This is what? Return the final value of expression. Right? So I think that's all for today, guys. I hope you like the solution. I hope you like the problem statement. I hope you find it interesting how we solve this problem, how we discuss all the details of this problem. And I think that's all for today, guys. So we'll meet tomorrow again with another LeetCode daily challenge. You can follow me on Instagram and LinkedIn. Those links are given in the description. You can also join our WhatsApp community channel. That link is also given in the description. And also we have found that, most of the people who view our video are basically just are not subscribing to our channel. So it's my humble request that you subscribe to our channel. And we'll meet tomorrow again with another LeetCode daily challenge. Till then, bye bye. Happy coding, guys.